Hello everyone, welcome to the channel HD Orion. We are studying accounting for partnership firms from T.S. Geriwal's textbook chapter 7 Death of a Partner. और अभी हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर. क्वेश्चन नंबर 14. X, Y and Z were partners in a firm. Z died on 31st May 2020. His share of profit from the closure of the last accounting year till the date of death was to be calculated on the basis of the average of 3 completed years of profits before death. Profit for the years ended 31st March 2018, 19 and 20 were rupees 18,000, 17,000 and 19,000 and 17,000 respectively. Calculate Z's share of profit till his death and pass necessary journal entry for the same when profit sharing ratio of the remaining partner does not change and when profit sharing ratio of remaining partner changes and new ratio being 3:2. Now इस क्वेश्चन में एक्स वाई और जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है. इसका मतलब दे आर इक्वल पार्टनर्स. और जेड के जाने के बाद फर्स्ट पार्ट में तो उनका वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है एक्स और वाई का 1:1, लेकिन यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में पार्ट बी में उसका रेशियो बदल गया. सो लेट अस सॉल्व द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन 14a. x is to y is to z is equal to 1:1:1. Z died. Z died on 31st May 2020. Okay. Now profit, average profit is equal to तीनों साल के प्रॉफिट का एवरेज निकालेंगे. सो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 18,000 प्लस 17,000 प्लस 19,000 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 18,000. तीनों साल का एवरेज. अब जेड्स प्रॉफिट इज इक्वल टू 18,000 इंटू जेड का पोर्शन कितना है 1/3 इंटू कितने दिन वो जिंदा रहा अप्रैल मई 2 महीने तो 2/12. आंसर आएगा इसका 1,000. सो नाउ जर्नल एंट्री. सो यहाँ इस एक 1,000 को एक्स और वाई गेनिंग रेशियो में जो कि 1:1 है इसमें शेयर करेंगे. सो एक्स से 500 और वाई से 500. नाउ लेट अस सी द जर्नल एंट्री. X capital account debited, Y's capital account also debited to deceased partner Z's capital account being profit to Z. Now 14b. हमें पता है x is to y is to z is equal to 1:1:1. Z died and now x is to y is equal to ratio is given 3:2. नाउ इस केस में हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा क्योंकि z का जो कैलकुलेटेड प्रॉफिट है ₹1,000 इसको y और z जो कि कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो गेनिंग रेशियो में देंगे. सो लेट अस कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. x का न्यू रेशियो 3/5 माइनस 1/3 और y का न्यू रेशियो 2/5 माइनस 1/3. एलसीएम 15, 9 माइनस 5. यहाँ भी एलसीएम 15, 6 माइनस 5. यहाँ हो गया 4/15 और यहाँ आ गया 1/15. सो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू 4:1. तो जर्नल एंट्री रहेगी हमारी
X capital account debited, Y's capital account also debited, to retiring partner Z's capital account. Rupees 1000 है, but it will be broken in the ratio 4:1. So 4:1, so it will be 800 and 200 being profit to Z. Question number 15. A, B and C were partners sharing profits and losses in the ratio 2:2:1. C died on 30th June 2020. Profit and sales for the year ended 31st March 2020 were rupees 1 lakh and rupees 10 lakh respectively. It means 10 लाख के सेल्स में 1 लाख प्रॉफिट है, मतलब सीधा सीधा 10% प्रॉफिट है सेल्स पर. सेल्स ड्यूरिंग अप्रैल टू जून. वाई जून? बिकॉज सी इज एक्सपायरिंग ऑन जून. सी डाइड ऑन 30th June. Therefore, so sales during this period was rupees 1,50,000. So 1,50,000 का सेल्स है, तो इसी का 10% उस दौरान का प्रॉफिट होगा. दैट विल बी 15,000. 15,000 तीनों ए बी सी में 2:2:1 में बटेगा, तो 6,000, 6,000, 3,000. You are required to calculate the profit share of profit of C till the date of his death. Very simple. Let us calculate. So solution 15, A is to B is to C is equal to 2:2:1 and C died on 30th June 2020. Now for how many months we have to give profit? Profit for how many months? April, May, June, 3 months. Now sales and profit में कोई कुछ कनेक्शन है. अगर सेल्स 10 लाख का है तो प्रॉफिट 1 लाख है. इट मीन्स ये सेल्स का 10% है. उसी समय अब कह रहे हैं अप्रैल से जून का सेल्स 1,50,000 है. ये वही पीरियड है जिस दौरान डिसीज्ड पार्टनर सी हमारे साथ था, मतलब फर्म के साथ था. सो बिकॉज ही डाइड ऑन 30th June, सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल 30th June sales was rupees 1,50,000. So what will be the profit? It will be 10% of it, that is 15,000. Now deceased partner C's profit. C's profit is equal to 15,000 into 1/5, that is equal to 3,000. Why not for 3 months? Because sales are for 3 months and therefore we need not to go for 3/12. That is the answer. Now question number 16. Ajay, Bhavna and Shreya were partners sharing profits in the ratio of 2:2:1. On 1st July 2019, Shreya died. Means 1st July means after 6 months. From April to July, it is 6 months. 3 months. Sorry, it is 3 months. April, May, June, 3 months. The books of accounts are closed on 31st March every year. Sales for the year ended 2018-19 rupees 5 lakh, and that from 1st of April to 30th June 2019 were rupees 1,40,000. Rate of profit during the past 3 years had been 10% on sales. इसका मतलब यह है कि सेल्स का 10% प्रॉफिट है. तो फ्रॉम 1st of April to 30th June सेल्स अगर 1,40,000 का है तो प्रॉफिट इसी का 10% होगा, जो कि 14,000 होगा. सिंस श्रेयाज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स was her only son who is specially abled, it was decided that the profit for the purpose of settling Shreya's account is to be calculated as 20% on sales. क्योंकि श्रेया का जो बेटा है वो स्पेशली एबल्ड है, इसलिए प्रॉफिट जो कैलकुलेट होगा वो 20% ऑन सेल्स होगा. कैलकुलेट श्रेया शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम. Let us see the solution.
So solution 16. Who are the partners Ajay, Bhavna and Shreya? Is equal to 2:2:1. And Shreya died on 1st July 2019. Now sales profit is equal to sales into 20%, especially for Shreya. So which will be equal to how much? If we say sales for this period is 1,40,000. So 1,40,000 into 20% is equal to rupees 28,000. Therefore Shreya's profit $28,000 into 1/5, that is equal to 5,600. Now journal entry is profit and loss suspense account debited to Shreya's capital account. $5,600 being profit to Shreya. नाउ यहाँ पर हम ये भी लिख सकते थे अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, भावना's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू श्रेया, और 5,600 को हम सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो में आधा आधा बेयर कर सकते थे. दैट एंट्री इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस एंट्री इज ऑल्सो करेक्ट. But when you are passing this entry, this will be shown on the asset side in the balance sheet. And we also know the date. Date is 1st July 1719. Let us see the next question. Question number 17. Amar, Bhuvan or Chaman were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Bhuvan died on 30th June 2020. Loss from the beginning of the accounting year till the date of death was estimated at rupees 1,80,000. See, loss, ये क्या दिया हुआ है? Loss दिया हुआ है. Amar and Chaman decided to share future profits in the ratio of 3:2, that is with effect from 1st of April 2020. Pass the necessary journal entries to record Bhuvan's share of profit or loss up to date of death. Let us see the solution. Solution 17. हमारे पास 3 पार्टनर हैं, अमर, भुवन और चमन, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1. उसमें से भुवन डाइड ऑन 30th जून. तो कितने महीने बाद मर गया? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स. लेकिन जैसा कि हर बार प्रॉफिट होता था, इस बार लॉस है. सो भुवन्स लॉस इज इक्वल टू 1,80,000 इंटू भुवन मतलब बीच वाला 2/6 इंटू 3/12, दैट इज इक्वल टू 15,000. अब भुवन के जाने के बाद अमर और चमन का रेशियो जो है वो है 3:2. सो वी विल कैलकुलेट गेनिंग रेशियो. गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. तो हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का ही निकालेंगे. अमर इज इक्वल टू न्यू रेशियो इज 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो इज 3/6. उसी तरीके से चमन, न्यू रेशियो इज 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो इज 1/6. एलसीएम इज 30. 18 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 3/30. और यहाँ
LCM is 30. 12 minus 5, that is equal to 7 by 30. So gaining ratio is equal to 3:7. अब जर्नल एंट्रीज करेंगे. जर्नल एंट्रीज में रिटायरिंग पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर कौन है? भुवन. सो भुवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. क्योंकि लॉस है इसलिए भुवन्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे. कितने से? 15,000 से. टू अमर्स कैपिटल अकाउंट एंड टू चमन्स कैपिटल अकाउंट. नाउ 3:7 में काटेंगे तो 4,500 एंड being loss to भुवन. नाउ यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट वाला भी एंट्री कर सकते थे. आपके पास चॉइस है कि आप कौन सी एंट्री करना चाहते हैं. क्वेश्चन नंबर 18. रमन, परम और करण were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Param died on 31st December 2019. Accounts of the firm are closed on 31st March every year. Sales for the year ended 31st March 2019 was rupees 12 lakh and sales for the 9 months ended 31st December 2019 was 6 lakh. Loss for the year ended 31st March 2019 was rupees 90,000. Calculate deceased partner's share of profit or loss from the beginning of the accounting year up to 30th December 2019. Now, Param died on 31st December 2019. So, 9 months after the start of the financial year. लेकिन पिछले साल का जो हमारा सेल्स था वो 12 लाख था एंड पिछले साल का जो हमारा लॉस है वो 90,000 है. मतलब 12 लाख अगर सेल्स था तो लॉस 90,000 था. तो उसी तरीके से अगर 6 लाख होगा, 6 लाख अगर प्रॉफिट सेल्स होगा तो लॉस कितना होगा? अगर सेल्स 12 है, यहाँ सेल्स 6 है, हाफ हो गया तो ये भी हाफ हो जाएगा. 90,000 था 12,000 के सेल्स में तो 45,000 होगा 6 लाख के सेल्स में. लेट अस सी द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन 18. 3 पार्टनर्स हैं, रमन, परम और करण, और इनका रेशियो जो है वो 3:2:1 है. अब परम डाइड. And on which date? On 31st of December. So after 9 months. After 9 months he died. Now sales और लॉस में संबंध है. सेल्स अगर कितना है तो लॉस कितना है ये क्वेश्चन में दिया है. सेल्स अगर 12 लाख है तो लॉस इज़ 90,000. उसी तरीके से सेल्स अगर 6 लाख होगा मतलब हाफ हो गया तो लॉस भी कितना हो जाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है, 45,000 हो जाएगा. देयरफॉर परम्स लॉस इज इक्वल टू 45,000 इंटू 2/6, दैट इज 1/3, विच इज इक्वल टू 15,000 लॉस. सिर्फ लॉस निकालने बोला था. अगर जर्नल एंट्री बोलता तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट खोल के भी बना सकते हैं या तो फिर गेनिंग रेशियो में भी डाल करके बना सकते हैं. क्योंकि ये लॉस है तो क्या एंट्री होना चाहिए? परम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रमन्स कैपिटल अकाउंट एंड टू करन्स कैपिटल अकाउंट. और गेनिंग रेशियो क्या रहेगा? 3:1. सो 15,000 को हम किस में काट देंगे? 3:1 में काट देंगे. मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, क्योंकि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से काफ़ी मिलता जुलता है. ख़ास करके रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर काफ़ी मिलता जुलता है. गेनिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट करना हम पहले से ही पिछले चैप्टर्स में सीख चुके हैं. सो इन कंपैरिजन
डेथ ऑफ अ पार्टनर बहुत आसान है इन कंपैरिजन टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।